Hello, students. So now we are going to study the second part of the necklace. So just a recap, you have already read that the story is written by Gao de Maupassant, a French writer, and there are main characters are Madame Loisel and her husband and her friend, okay, Madame Forestier. So what happens that she is very frustrated in her life because she wants to live a very rich, a luxurious life, but due to her poor family, she was married to a clerk, and all her dreams could not be fulfilled. So what happens? She's always sad. She's not happy. One day, her husband brings her an invitation of the ball dance. So she's not happy to go there because she thinks she doesn't have a good dress, she doesn't have any jewelry to wear, and ultimately her husband gives her some money to buy a dress. She buys a dress, but she does not have money to buy a jewel. So she borrows a piece of jewelry from her friend Madame Forestier, that is a diamond necklace. What happens then when she goes to the ball dance? She's very happy there, she looks very pretty, and she was very happy. But what happens then? So this is now where we are going to start from. Now she is very happy, the party is over now, and 4 o'clock in the morning she comes back with her husband. Now there is no carriage, nothing is there at it's early morning, 4 o'clock. So he tries to call a coachman who is at a distance. They try to call him. Coachman is a driver of a horse drawn carriage. So now we'll proceed further. Now you can see this is a picture. The day of the reception, the party. You can see the big hall. Here the party it was, and here she is, Mrs. Loisel. She's looking very graceful, elegant. She's wearing a diamond necklace and her dress. So all men looked at her, inquired her who she was, and they wanted to introduce themselves to her. She danced very nicely and she was very happy. Then what happens? They talked along towards the river, hopeless and shivering. But they did not get a carriage, so they had to walk the distance. They found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. Then ultimately they find one carriage. उनको एक गाड़ी मिल जाती है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. Wearily means tired. वो बहुत थक जाते हैं क्योंकि रात भर जागे हैं, तो थकते हुए अपने अपार्टमेंट में जाते हैं. It was all over for her. और उसके लिए ये इतनी अच्छा खूबसूरत उसका जो पल थे वो खत्म हो चुके थे. And on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और उसका हस्बैंड ये सोच रहा था कि उसको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है. वो ये सोच रहा था. She removed the wraps from her shoulder before the glass for the final view of herself in her glory. फिर कपड़े बदलने से पहले उसने सोचा कि एक बार अपने आप को शीशे में और देख लूं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आज. सडनली, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को शीशे में देखा, उसने वो शॉल जो ओढ़ा हुआ था रैप उसको हटा के अपनी ड्रेस को शीशे में अपने आप को देखा, लेकिन वो शी अटर्ड अ क्राई, वो बहुत जोर से चीखी. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. जो डायमंड का नेकलेस जो उसने मैडम फॉरेस्टर से लिया था उधार, वो उसके गले में नहीं था. लॉयसेल ऑलरेडी हाफ ड्रेस. लॉयसेल अपने आधे कपड़े बदल चुके थे. व्हाट्स द मैटर? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. वो बहुत एक्साइटेड होकर उसकी तरफ को आई. आई हैव आई हैव आई हैव आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस. कि उनके गला जो मेरा नेकलेस है मेरे गले में नहीं है. ही अरोज इन डिसमे. वो भी एकदम से उठा डिसमे, आश्चर्य में. व्हाट? हाउ इज दैट? इट इज नॉट पॉसिबल. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस. उन्होंने कपड़ों की तहों में देखा कि कहीं वहीं तो नहीं गिर गया. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक. उसने अपने क्लोक में देखा. इन द पॉकेट, एवरीवेयर. दे कुड नॉट फाइंड इट. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी हैड लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? उसने कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुम मिनिस्टर के घर से निकली थी तो वो तुम्हारे गले में था? बताओ, याद करो. यस, आई फेल्ट इट वॉज एज वी केम आउट. उसने कहा, हाँ मुझे याद है जब वहां से हम निकले तो मेरे गले में था. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल. उसने कहा, अगर गली में वो चल रहे थे जब हम लोग पैदल पैदल तब गिरा होता तो उसकी आवाज आती. इट मस्ट बी इन द कैब. हो सकता है वो जो कैब में हम लोग बैठे हो उसमें गिर गया हो.
Yes, it is possible. Did you take the number? क्या तुमने कैब वाले का नंबर लिया? No. And you, did you notice what it was? क्या तुमने नोटिस किया कैसा था? उसने कहा no. They looked at each other, utterly cast down. Cast down माने sad. दोनों ही बहुत sad हो गए, उन्होंने एक दूसरे को देखा. Finally, Loisel dressed himself again. फिर लोइसेल ने दोबारा कपड़े पहने. I am going, he said, over the track where we went on foot. उसने कहा उसी रास्ते पे जाऊंगा जहां से हम पैदल पैदल चले थे. To see if I could find it. And he went. वो चला गया. She remained in her evening gown, not having the force to go to the bed. वो इवनिंग के गाउन जो पहनी थी उसी में रही. उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सो जाए, लेट जाए. टुवर्ड्स 7 o'clock her husband returned. करीब 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया. He had found nothing. उसे कुछ भी नहीं मिला. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस के पास गया, कैब के ऑफिस में गया, उसने एक एडवर्टीजमेंट भी दिया पेपर में कि रिवॉर्ड देंगे जिसको मिलेगा, क्योंकि वो एक डायमंड का नेकलेस था, बहुत महंगा था. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डमेंट. बिविल्डमेंट माने क्या होता है? बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में, बहुत ही परेशानी में वो पूरी दिन उसने बिताया. बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. फ्राइटफुल माने अनप्लेजेंट, बहुत खतरनाक, डरावना. ये डिजास्टर माने दुर्घटना जो उनके संग हो गई. लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल. लॉयसेल शाम को जब घर आया तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. यानी इतनी उसने कोशिश करी लेकिन उसको नहीं मिला. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the. clasp माने क्या होता है? जहां से नेकलेस को बांधते हैं ना, उसकी जो पकड़ होती है उसको टूट गया है ना. तो उसने कहा कि अपनी फ्रेंड को तुम एक लेटर लिख दो कि नेकलेस का क्लास्प टूट गया है. ये आप देख सकते हैं कि जोर से चिल्लाई. उसका हस्बैंड कपड़े बदल रहा था. वो कहा क्या, व्हाट्स द मैटर? तो उसने बोला देखो फॉर्म नहीं है. तो उसका हस्बैंड पुलिस में जाता है. 7 o'clock तक बेचारा सड़क पे ढूंढता रहता है. रात में देख रहे हैं आप कैसे सड़कों पे ढूंढ रहा है. फिर वो मिसिंग का भी ऐड देता है कि 10,000 फ्रैंक्स इनाम देगा, है ना. और ये देख रहे हैं वो पूरा दिन बैठी उसी ड्रेस में बैठी हुई है, वेट कर रही है. और फिर आगे वो देखते हैं कि वैसा ही एक डायमंड का नेकलेस उनको दुकान पे मिलता है. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. क्लास्प ऑफ द नेकलेस, वो कहते हैं तुम उसको लिख दो कि जो नेकलेस का क्लास्प है वो टूट गया है. एंड यू विल हैव इट रिपेयर्ड. वो रिपेयर करके दे देंगे. दैट विल गिव अस टाइम. तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. डिक्टेट माने ऑर्डर, जिसके जैसा उसके हस्बैंड ने बताया वैसे ही लिख देती है. एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एक हफ्ते तक वो ढूंढते रहे उस नेकलेस को, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि शायद ऐड पढ़ के कोई दे जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. एंड लॉयसर ओल्डर बाई 5 years. और उसे एक हफ्ते में लॉयसल टेंशन से और चिंता के मारे 5 साल बूढ़ा हो गया. डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. उसने कहा हमें इस ज्वेल को वापस करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा. मतलब दूसरा खरीद के देना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी चीज है उसको तो देना पड़ेगा. इन द शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड. अब वो शॉप में जो एक पैलेस रॉयल एक डायमंड की ज्वेलरी शॉप थी, उसमें उनको वैसा ही मतलब उसी के जैसा हार, चैपलेट माने गले में गोल गोल हार, ऐसे ही गले में डायमंड का उनको मिल गया, जो कुछ कुछ उसी की तरह था जो खोया था. विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स. उस डायमंड नेकलेस की कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी. बच्चों ये याद रखना आप कि कितने का था वो नेकलेस. दे कुड गेट इट फॉर 36,000. फिर काफी बार्गेनिंग और सब करने के बाद वो 36,000 में उनको पड़ा. लॉयसेल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे. ही बोरोड द रेस्ट. अब बताइए केवल 18,000 उनके पास था और उसको 36,000 चाहिए था. ही मेड ruinous promise. ruinous माने बर्बाद कर देने वाले, ruin माने डिजास्टर, डिस्ट्रक्टिव. उसने ऐसे प्रोमिस लोगों से किए. टुक मनी फ्रॉम यूजर्स. यूजर्स कौन होते हैं? जो ब्याज पे पैसा देते हैं. कर्जा लिया उसने. एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स. और बहुत सारे लोगों से उधार लिया. लेंडर्स माने जो पैसे को उधार देते हैं. तो आप देख रहे हैं कि उसको जो बाकी की रकम जुड़ाने के लिए इतने सारी चीजें करनी पड़ी. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000. उसने उस व्यापारी को 36,000 फ्रैंक्स दिए. When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone. अब जब उसका नेकलेस वापस करने गई तो मैडम फॉरेस्टर थोड़ी सी गुस्सा हुई, क्योंकि इतने दिनों बाद वो आई. फ्रिजिड टोन माने थोड़ा सा फॉर्मल बिहेवियर में उन्होंने कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम.
उसने कहा तुम्हें मेरी ज्वेलरी जल्दी वापस करनी चाहिए थी, मुझे भी तो ज़रूरत पड़ती उसकी, है ना? तो मतलब उनको ये पता नहीं चल पाया कि ये नेकलेस दूसरा है। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम फॉरेस्टर फियर्ड। और मैडम फॉरेस्टर ने वो ज्वेल के डब्बे को खोला भी नहीं, देखा भी नहीं। उन्हें पता था कि वही हार होगा, उनका ही होगा। वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन? परसीव माने जानना। अगर वो पहचान जाएंगी, सब्स्टिट्यूशन माने उसकी नकली, मतलब वो समझ जाती कि दूसरा हार है, जो उनका था वो नहीं है ये हार। वॉट शुड शी से, वो क्या कहेंगी? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर? क्या वो उसको एक रॉबर मान लेंगी, चोर मान लेंगी कि तुमने मेरा हार बेच के दूसरा हार ले आई तुम? मैडम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। लेकिन मैडम फॉरेस्टर ने वो हार खोल के भी नहीं देखा और उन्होंने रख लिया और ये वापस आ गई। अब यहाँ से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया, यानी कि अब उसको असली जिंदगी, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, अब उसको पता लगा। हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी माने जरूरत, क्योंकि उसके हस्बैंड ने इतना सारा कर्जा उठाया था, उधार पैसा लिया, तो उसके हस्बैंड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस कर्जे को चुकाने के लिए, और इसको भी बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ? शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। हीरोइकली माने बहादुरी के संग उसने अपना भाग, अपना काम जो था किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। डेप्ट माने कर्ज, फ्राइटफुल माने डरावना, इस कर्ज को चुकाना बहुत जरूरी था। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, उन्होंने अपना घर भी बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, पहले वो एक अच्छे घर में रहते थे, अब वो एक एटिक यानी ऊपर किसी की मंजिल पे रहने लगे, छोटा सा कमरा लेके। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, पहले उसके घर में नौकर थे जो खाना आना बना दिया करते थे, लेकिन अब उसको ऑडियस माने अनप्लेजेंट जो काम थे सारे करने पड़े किचन के। जैसे शी वॉश द डिशेस, बर्तन धोना। शी वॉश द सॉइल लेनिन, कपड़े धोना। देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, यानी सारे कपड़े, उन रसोई के कपड़े, जितने भी गंदी चीजें सब उसको करनी पड़ी काम। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। और उसके घर में रनिंग वाटर भी नहीं था, तो उसको नीचे जाना पड़ता था, वहां से पानी भर के लाना पड़ता था, है ना? और हर सीढ़ी पे वो सांस लेती थी पानी, क्योंकि इतना वजन लेके चलना सीढ़ियों पे बहुत मुश्किल था उसके लिए, लेकिन वो कर रही थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और वो एक ऑर्डनरी जैसे गरीब लोग रहते हैं वैसे कपड़े उसके हो गए। शी वेंट टू द ग्रोसर, खुद वो ग्रोसर राशन की दुकान पे जाती, बूचर की दुकान पे जाती, कसाई, बूचर, फ्रूटर फ्रूट वाले के जाती, विद अ बास्केट इन आर्म, अपने हाथ में बास्केट लेके खुद जाती। शॉपिंग। हैगलिंग, हैगलिंग माने क्या होता है? बार्गेनिंग करना। एक एक पैसे, एक एक सिक्के के लिए, सॉस माने स्मॉल वॉइल वैल्यू कॉइन होती है फ्रांस में, एक एक सिक्के के लिए यानी एक एक कॉइन के लिए झगड़ा कर रही, बार्गेनिंग करती थी वो, है ना, ऑफ अ मिजरेबल मनी, क्योंकि उसको पैसा बचाना था। तो पैसा बचाने के पीछे उसकी लाइफ जो थी वो पूरी चेंज हो गई। पहले उसके घर में दो एक आध नौकर थे जो काम कर दिया करते थे, एटलीस्ट सामान लाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, ये सब नौकर कर दिया करते थे। लेकिन अब उसने वो अच्छा घर भी छोड़ दिया, गंदे घर में रहने लगी, सारा काम खुद करने लगी। इस तरह से उसकी लाइफ बिल्कुल हेल हो गई। और उसका हस्बैंड बेचारा, द हस्बैंड वर्क इवनिंग, उसका हस्बैंड शाम तक काम करता, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, किसी की मर्चेंट क्या काम करता, उसकी बुक्स को ऑर्डर में रखता, और नाइट में भी बेचारा काम करता था। ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, यानी उस समय पहले प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी, तो जैसे एक किताब की दूसरी किताब बनानी तो कॉपी करनी पड़ती थी, तो वो कॉपी किया करता था, उसके एक पेज, है ना, 5 सॉस मिलता था, तो बेचारा रात में बैठ के कॉपिंग का काम करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये परिस्थिति उनकी 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, लेकिन 10 साल के बाद उनके सारे कर्जे चुक गए। मैडम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन वो 10 साल इतनी मेहनत उन दोनों ने की कि अब वो बूढ़ी लगने लगी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमन हो गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, क्रूड माने क्या होता है? यानी रॉ, मैंने बिल्कुल रिफाइंडनेस, उसकी जो ब्यूटी थी, जो उसमें एक एलिगेंस था, ग्रेस था, वो सब खत्म हो चुका था, क्योंकि घर के सारे काम कर करके उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, उसके कपड़े गरीबों वाले हो गए थे, उसके बाल वैसे हो गए थे। ठीक है। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल ऐसे बिखरे से रहते थे। हर स्कर्ट्स, और ही माने नॉर्मल पोजीशन में नहीं, करेक्ट पोजीशन, आउट ऑफ मतलब एबनॉर्मल सी स्कर्ट्स थी उसकी। हर हेयर, उसके हाथ लाल हो गए थे बर्तन कपड़े धो धो के। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वो जोर जोर से बोलने लगी थी, रफ वॉइस हो गई उसकी, क्योंकि बार्गेनिंग करना, सामान लाना।
and washed the floors with large pails of water. और वो फर्श धो धो के उसके हाथ भी लाल हो गए थे. पेल्स माने क्या होता है? बकेट भर भर के पानी लाना पड़ता था, तो उसकी वजह से उसके हाथ कर्रे रूखे लाल लाल हो गए थे. But sometimes when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of the evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. लेकिन अभी भी जब उसका हस्बैंड ऑफिस चला जाता था, तो वो अपने घर की खिड़की में बैठे बैठे उस शाम को याद किया करती थी, उस बॉल को याद किया करती थी, जिस दिन वो इतनी सुंदर लग रही थी और लोग उसकी इतनी चमचागिरी आगे पीछे घूम रहे थे सब उसके. यानी वो उसकी तरह ड्रीम की तरह था बस एक. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. वो सोचने लगी कि अगर उसने वो नेकलेस न खोया होता तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती. हु नोज, क्या पता. हाउ सिंगुलर इज लाइफ. लाइफ कितनी अकेली है, एकांत है. एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितने चेंजेस है लाइफ में. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन. कैसे एक छोटी सी चीज इंसान को सेव कर सकती है या बर्बाद कर सकती है, उनसे अच्छा कौन जानता था. One day, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, एक दिन वो शाम को एक वॉक करने के लिए एक पार्क में चली गई, अपनी चिंताओं को मुक्त होने के लिए थोड़ा सा बाहर चली गई. She suddenly perceived a woman walking with a child. उसने देखा, परसीव माने उसने देखा, चेक नोट किया कि एक औरत एक बच्चे के संग थी, एक बच्चे के संग घूम रही थी. इट वॉज मैडम फॉरेस्टर. वो लेडी कौन थी? मैडम फॉरेस्टर. मैडम फॉरेस्टर वही थी जिससे उसने नेकलेस लिया था. स्टिल यंग, प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. अभी भी वो यंग थी, प्रिटी थी, अट्रैक्टिव थी, क्योंकि वो रिच थी. उसको कोई घर के काम तो करने पड़ते नहीं थे, जो क्रूड काम वो कोई करती नहीं थी, तो वो अभी भी वैसी अट्रैक्टिव थी. मैडम लोइसल वॉज अफेक्टेड. मैडम लोइसल को उसको देख के बड़ा प्रभावित हुई कि देखो ये कितनी सुंदर अट्रैक्टिव है. शुड शी स्पीक टू हर, क्या वो उससे बात करे? यस सर्टनली. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. व्हाई नॉट. उसने कहा चलो अभी मिल गई है, मैं इसको बताती हूँ कि तुम्हारा नेकलेस हमने बदल के दूसरा दिया था, अब तो उसने सब चुका दिया कर्जा. शी अप्रोच्ड हर. उसके पास गई. गुड मॉर्निंग जेनी. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. उसकी फ्रेंड ने जब उसको देखा तो वो पहचान ही नहीं पाई कि ये वही लॉयसेल है. पर्सनेज माने पर्सन को, क्योंकि उसने उसको इतना फेमिलियर जेनी नाम से बुलाया, तो उसको हर कोई थोड़ी जेनी नाम से बुलाता होगा, उसके पुराने दोस्त ही बुलाते होंगे. तो ये तो समझ गई कि कोई जान पहचान का है, लेकिन कौन है वो पहचान नहीं पाई. शी स्टैमर्ड. वो हकला के बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो. यू मस्ट बी मिस्टेकन. उसने कहा शायद तुम्हें कोई गलती हुई, तुम कोई और को ढूंढ रही हो, क्योंकि लॉयसल इतनी चेंज हो चुकी थी कि वो उसको पहचान नहीं पाई. ये देखो, दोनों फ्रेंड्स मिल रही हैं, वो पूरी बात बता रही है उसको, ये गार्डन में. इसके आप पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हैं बाद में कि वो अपनी फ्रेंड से क्या क्या बोलती है और क्या क्या डायलॉग्स हैं. चलिए. नो, आई एम मैटिल्डा लॉइजल. फिर वो अपना परिचय देती है कि आई एम मैटिल्डा लॉइजल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. उसकी फ्रेंड एस्टोनिश्ड हो गई, अचंभित रह गई और जोर से चिल्लाई, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू हैव चेंज्ड. तुम कितनी बदल गई हो. एस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. उसने कहा हाँ, मेरे बहुत कठिन दिन थे जब से मैंने तुम्हें देखा. यानी आखिरी बार जब मैं तुमसे मिली उसके बाद मेरी बहुत कठिन दिन गुजरे, बहुत मिजरेबल दिन गुजरे कहना चाहिए, सब तुम्हारी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट. मेरे कारण, मेरे कारण कैसे. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल. उसने कहा क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने जो लोन मैंने उधार दिया था, लेंड किया था मिनिस्टर की बॉल में पहनने के लिए. यस वेरी वेल. वेल आई लॉस्ट इट. उसने कहा वो खो गया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. उसने कहा अरे तुमने मुझे वापस कर दिया था, कैसे खो गया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट. मैंने तुमको दूसरा हार दिया था उसी के जैसा, सेम. एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और हमें 10 साल लग गए उसकी कीमत चुकाने में. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस यू हैव हु हैव नथिंग. उसने कहा अब तुम समझ सकती हो कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो पैसे कर्जा चुकाना. बट इट इज फिनिश एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. उसने कहा मैं कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ. अब वो कर्जा भी उतर गया, सब पैसे हमने चुका दिए. मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट. मैडम फॉरेस्टर एकदम से चुप हो गई. शी सेड यू से दैट यू. वो एकदम सन्नाटे में रह गई. मैडम फॉरेस्टर चुप हो गई. ये देखो वो दोनों जानी पार्क में मिलती हैं. हेलो जेनी, वो अपनी फ्रेंड को मिल रही है, वो देखती लेडी को बच्चे के साथ.
फिर वो कहते यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। उसने कहा तुम ये कह रही हो कि तुमने जो मेरे को डायमंड नेकलेस दिया है वो मेरे बदले, मेरे नेकलेस के बदले तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन। परसीव माने तुम्हें उसके बारे में पता नहीं चला, तुमको पहचान नहीं पाई, कॉन्शियस नहीं हो पाई, तुम उसको समझ नहीं पाई। दे वर जस्ट अलाइक, हाँ वो दोनों हर एक से थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। एंड शी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, वो थोड़े गर्व से और खुशी से मुस्कुराई कि हाँ। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड, मैडम फॉरेस्टर बहुत अंदर तक हिल गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। ओ माई पुअर मेटिल्डा, उसने कहा अरे मेरी बेचारी मेटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा हाल तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, मेरा हार तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। यानी कि जो उसने उसके बदले में उसको डायमंड का नेकलेस दिया, वो डायमंड का नेकलेस नकली था, और जो उसने दिया वो असली था। और इस चक्कर में उसकी 10 साल जिंदगी, यानी कि पूरा जीवन ही एक तरह से दोनों का बर्बाद हो गया। तो ये स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव। या आप देख सकते हैं कि मैटिल्डा वो उसको बताती है तो वो एकदम स्टॉनिश रह जाती है, और वो बताती है कि ये नेकलेस केवल 500 फ्रैंक्स का था। तो बच्चों हम इस स्टोरी से यही सीखते हैं कि दैट ये मेथिल्ड लॉयसल का कैरेक्टर है, दैट शी वाज वेरी सेल्फिश, डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी, जेलस। अब हम ये क्यों बोलेंगे कि वो सेल्फिश थी? सेल्फिश इसलिए थी क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसका हस्बैंड एक क्लर्क है, तो उसको कहाँ से गाउन ला के देगा, कहाँ से ज्वेलरी ला के देगा। और उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था, जो उसको खुश करने के लिए वो बोलता था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा कैरेक्टर स्केच के लिए। शैलो मैंने बहुत गहराई में नहीं सोचती थी, डिससेटिस्फाइड थी, हमेशा उसको अपनी लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं लिया, है ना। ड्रीम्स ऑफ वेल्थ, हमेशा धन दौलत के बारे में सोचती थी। एडमिरेशन एंड ग्लैमर ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड लुक्स एंड चार, यानी कि वो अपने गुड लुक्स और अपने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सोचती थी कि मेरे पास अगर धन दौलत होता तो शायद मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होती। और यही कारण था कि शी वॉज जेलस, शी वॉज डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी विद वॉट एवर शी हैज। और यही हमको इससे सीखना भी चाहिए। ओके। फिर मॉन्से लॉयल से बहुत प्रैक्टिकल आदमी था, हार्ड वर्किंग था, लॉयल था, और एक क्लर्क था, है ना। मॉन्से लॉयल ड्यूटीफुल, लो लेवल गवर्नमेंट क्लर्क था, कंटेंट विद मिडिल, वो अपनी लाइफ में कंटेंट था, सेटिस्फाइड था। कैनॉट अंडरस्टैंड वाइफ अनहैप्पीनेस बट एक्यूसेस टू हर डिजायर, पर उसकी वो हर इच्छा को पूरा करना चाहता था। तो ये उसके बारे में एक कैरेक्टर है। और ये हमको एक सबक मिलता है कि वी शुड बी कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव। और मैडम फॉरेस्टर वेल्दी थी, जेनरस, जेनरस क्योंकि उसने अपना हार उसको दिया, काइंड थी, ट्रस्टिंग थी, विश्वास किया कि वो वापस कर देगी। तो ये तीनों कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, so thank you, keep studying and subscribe the channel. Bye, have a nice day.